Okay, so today we have completed till now various topics related with CPU scheduling, and they are what are the meaning of process, what is process state. In this, we have studied about various process states like new, ready, running, waiting, exit, and we also have studied about the various schedulers, short-term scheduler, medium-term scheduler, and long-term scheduler. In the continuation of that, we have studied about the CPU scheduling, what is the meaning of CPU scheduling, why we are doing CPU scheduling, what are the various criteria for the CPU scheduling. In this, we have studied about the arrival time, process ID, throughput of the system, turnaround time of the system, waiting time of the system, response time of the system. So we have gone through all the criteria related with CPU scheduling. Moving forward, we have studied about the FCFS CPU scheduling, first come first serve CPU scheduling. We have studied about SJF CPU scheduling, which is shortest job first scheduling. We have studied about SRTF CPU scheduling, shortest remaining time first CPU scheduling. We have studied about the priority scheduling. We have studied about the priority scheduling. We have in the priority scheduling, we have studied about the non-primitive priority scheduling as well as primitive priority scheduling. In the continuation of that, we have studied about the round robin CPU scheduling. And in this, we have studied about the time slice factor time slice factor, and we have also studied about the relationship between time slice and turnaround time, average turnaround time of the system. We have also studied about the relationship between the time slice and context switching. These are the topics which we have covered in this module, and we have gone through all the numericals related with each and every topic. Today we will study about we will move forward and study it about the multi-level CPU scheduling, multi-level queue CPU scheduling, and then we studied about the multi-level feedback CPU scheduling. We are waiting for students to join. Okay, one of the student had joined. Okay, good morning, Shivani. Uh, we have in this module we have covered all these topic. Are you agree with this? Up till now, here we have covered all the topics till now. Today's we will try to complete these topics. Okay, Shivani has left. There are no students right now. Okay. So we will wait another 5 minutes.
so that students can join. Let's see, we have any feature by which we can do the timing, and we run a stopwatch here. Okay, Mushkan and Subham Kumar, please inform your classmates to join the classes. Am I audible to all of you? Yes, sir. I've informed. Okay, thank you for the confirmation. We will wait another 2 to 3 minutes so that everyone can join. Kindly inform them to join as soon as possible.
Okay, so 6 of you have till now, 6 of you have joined. 6 of you, 7 of you have joined. So let's start our classes, and in the meantime, others will join. ठीक है. Okay, in previous class, I gave you one assignment, a little assignment to Sumit Kumar. Kindly switch off your video. Okay, thank you. So in our previous class, we have studied about the round robin scheduling. We have completed this, and we have also completed SRTF. In the process of round robin scheduling completion, I gave you a task to find out the relationship between the time quantum and average turnaround time. Okay, one of the problem was there, and you have to draw the graph. I hope all of you have completed this problem. Those who have completed, can they respond whether they have completed or not? Yes or no will be sufficient for the solution. I don't need the whole solution. I want to know that whether you are enthusiastic to did the assignment or not. Okay, till now 11 of you have joined the classes. So let's start our classes without wasting any time, because none of you have responded till now. So why the help, we have studied till now all the CPU scheduling, and in the continuation of that, in, in the continuation of that, we are today we are going to study about the multi-level queue. सो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ एक क्या होता था, एक रेडी क्यू होता था, और इसी रेडी क्यू के थ्रू हम क्या करते थे, सारी प्रोसेसिंग करते थे, सिलेक्शन करते थे कि किस प्रोसेस को हमें सेलेक्ट करना है और किसको सीपीयू एलोकेट करना है. ठीक है. Now we have a different scenario where we have multiple queues. We will have a queue for the foreground process. foreground process के लिए एक अलग सा क्यू होगा हमारे पास, रेडी क्यू. और हमारे पास रेडी क्यू होगा, रेडी क्यू होगा किसके लिए, बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए. ओके, तो फोरग्राउंड प्रोसेस के लिए अलग सा क्यू होगा, बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए अलग सा क्यू होगा. ये हमने रेडी क्यू का जो पार्टीशन किया है दो सेपरेट क्यू में, ये क्यों किया है, क्योंकि इंटरैक्टिव प्रोसेस उस टाइप के प्रोसेस होते हैं जिनको कि रिलेटिवली स्मॉल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है, प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है. ओके, और जो आपके बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं उनको क्या होता है, दे नीड
much more processing time. Okay, it means that large processing time के लिए हम लोग क्या करेंगे, we will choose that process as to be scheduled by the background process. foreground जिनके लिए हमें बहुत ही कम प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड होगा, और बैकग्राउंड होगा जिनके लिए लार्ज प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को पहले दो पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं. जितने भी हमारे प्रोसेस होंगे उनको दो पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं. One will become the foreground process and another will become the background process. And foreground process will go into the foreground ready queue and background process will go into the background ready queue. अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अब इससे बेनिफिट ये होगा कि we can schedule the foreground process separately and background process separately. तो जो हमारा एक प्रॉब्लम आप लोग को याद होगा, which was convoy effect. convoy effect. तो convoy effect में क्या होता था, due to the large processing time required process, small processing time process are waiting. सर वेटिंग रूम एक बार चेक कर लीजिए. वेटिंग रूम में तो कोई नहीं है अभी, कोई भी नहीं है अभी. ओके सर. ओके, तो हमारा क्या होता था कि कॉन्वॉय इफेक्ट क्रिएट हो जाता था लार्ज प्रोसेस के कारण. जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम एफसीएफएस शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर हमारा एक लार्ज प्रोसेस मान लिया जाए जिसको कि 50 यूनिट्स रिक्वायर्ड होगा, और अगर हम उसको सीपीयू पहले एलोकेट कर देंगे तो जो स्मॉल प्रोसेस होंगे जिनको कि 2 यूनिट या 4 यूनिट रिक्वायर्ड होगा, तो ये क्या होगा, ये इनका वेटिंग टाइम बहुत इंक्रीज हो जाएगा. वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इनका बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि the system has a very high value of average waiting time as well as average turnaround time. Okay. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, दिस इज द सिनेरियो ऑफ एफसीएफएस. अगर क्या एसजेएफ में भी कॉन्वॉय इफेक्ट हो सकता है? थिंक अबाउट दिस. आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम, काइंडली थिंक अबाउट. माय क्वेश्चन इज दैट can we have a scenario of convoy effect in the SJF CPU scheduling? Okay, hope I'm getting some response. Smriti Rupam का कहना है no sir. Okay, I got a response as a no. 15 of you have joined right now. सर कन्वे इफेक्ट क्या होता है? बाद में ज्वाइन किए हैं क्लास. What is your name? Can you tell me your name? प्रेम प्रकाश सर. Prem Prakash. Prem Prakash, Yes, I sir. think in the class of FCFS CPU scheduling, I have told you that okay, most of you are giving me answer as a no. Okay, in the class of FCFS CPU scheduling, I told about the convoy effect in where I gave you an example of a tunnel, जिसमें कि एक टनल को क्रॉस करना है and we have different vehicle and all the vehicle have different speed. तो अब क्या होगा कि अगर एक
बहुत लेस स्पीड का व्हीकल पास करेगा, वन वे टनल है, अगर वो पास कर रहा होगा, इसका स्पीड लेस है, तो क्या होगा कि जिनका स्पीड हाई होगा वो क्या होंगे, चूंकि ये अभी पास पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिनको कि हमारा स्पीड जिनका हाई है यस सर। वो डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, दिस सिनेरियो विल कॉल्ड एज अ कॉन्वॉय इफेक्ट। ओके ओके सर, ओके। ओके तो ओके ओके तो इन मेरा अब ये क्वेश्चन है कि क्या एसजीएफ सीपी शेड्यूलिंग में भी कॉन्वॉय इफेक्ट होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया नो सर, एसजीएफ सीपी शेड्यूलिंग में कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होगा। But I want to tell you that SGF is also prone to get affected by the convoy effect. I will clear you how this is possible. That I'm giving a scenario. We have process, we have arrival time, and we have burst time. Okay. We have process 0, process 1, process 2. Now this process come at the time 0, this process come at the time of 1, and this process came at the time of 2. And the burst time of this process is 28, burst time of this process is 3, and burst time of this process is 2. Now tell me what will the Gantt chart, whether this will be the Gantt chart, P0, क्योंकि 0th टाइम पे तो हमारे पास कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो एसजीएफ क्या कहता है कि वी विल सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम, स्मॉलेस्ट जिसका होगा तो उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड एज वेल एज एसजीएफ इज नॉन प्रिमिटिव इन नेचर, ये नॉन प्रिमिटिव भी होता है नेचर में, तो क्या होगा हमारा एसजीएफ में P0 सेलेक्ट होगा 0th टाइम पे, और कब तक इसको पास रहेगा 28 तक। अब P1 नेक्स्ट, P1 एंड P2 दोनों आ जाएंगे हमारे सिस्टम में, और सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P2 का है, तो P2 सेलेक्ट होगा कितने देर के लिए, 2 यूनिट के लिए, तो 30 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। देन P1 सेलेक्ट होगा, और इसको कितने देर के लिए सीपीयू हम एलोकेट करेंगे, 3 यूनिट के लिए, अब कोई है नहीं कंपटीशन में, तो 33 पे ये जाके होगा वर्क। अब यहां पे आप मुझे बताएं कि वेदर दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ कॉन्वॉय इफेक्ट। यस स्टूडेंट, Smriti Rupam has answered yes sir. Okay, it means that you got my Subham, Sumit also, they have responded yes. Very good. It means that you got the concept that SGF will also will be the victim of convoy effect. Now, again, I have one of the counter question. Okay, well done. I have the counter question, whether SRTF will be the victim of convoy effect or not. Okay, now I'm getting answers. Smriti Rupam has answered as a no, sir. Okay. Sumit has also answered no. Simran has also answered no. Okay. Yes, very good. Very good, all of you. Because सभी को पता है एसआरटीएफ में हम क्या करते हैं, रिमेनिंग टाइम जो शॉर्टेस्ट होता है हम उस पे लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, नो डाउट एसआरटीएफ को भी देख लेते हैं एक बार। 0 पे तो P0 को ही मिलेगा, बट एसआरटीएफ इज प्रिमिटिव इन नेचर, तो क्या होगा 0 से लेकर के कहां तक, 1 तक तो ये अनइंटरप्टेड रन करेगा। अब 1 पे क्या होगा,
इसका रिमेनिंग टाइम 27 हो जाएगा, और एक नया प्रोसेस P1 रहेगा जिसका कि रिमेनिंग टाइम 3 रहेगा। तो कौन स्मॉलेस्ट है? P1 स्मॉलेस्ट है, तो P1 को मिल जाएगा। कब तक के लिए मिलेगा? तो अनइंटरप्टेड 2 तक के लिए तो ये जाएगा ही जाएगा। अब 2 पे क्या हो जाएगा? इसका रिमेनिंग टाइम 2 हो जाएगा, इसका रिमेनिंग टाइम भी 2 रहेगा। तो अब हो गया यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले अराइवल टाइम किसका सबसे लेस है? तो अराइवल टाइम किसका लेस है? P1 का ही लेस है। तो हम P1 को कंटिन्यू करेंगे, P1 को फिर से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट अब और कोई प्रोसेस इसको कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए नहीं है या कंपीट करने के लिए इसके साथ नहीं है। तो क्या होगा कि वी विल कंटिन्यू विथ P1 और पूरा का पूरा 2 यूनिट और देंगे इसको, तो 4 तक के लिए ये चला जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? P1 यहां से कंप्लीट हो जाएगा, फिर P0 और P2 रहेगा। तो किसका रिमेनिंग टाइम किसका सबसे लेस है? P2 का सबसे लेस है, तो P2 कंटिन्यू करेगा, 6 तक कंटिन्यू करेगा। लास्ट में हम जब कोई प्रोसेस नहीं रहेगा तो P0 को एलोकेट करेंगे, और P0 27 टाइम यूनिट और रिक्वायर्ड है, तो 33 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई SRTF is not get impacted by the convoy effect. Remember this. But SJF got impacted by the convoy effect due to the reason that SJF is a non-primitive priority scheduling. Okay. Okay, very good students. होप मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग को क्लियर होगा सब कुछ। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस सिनेरियो में था कि वी हैव ओनली वन रेडी क्यू, अब हम क्या करें? मल्टी लेवल क्यू में हम सबसे पहले तो प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक फोरग्राउंड प्रोसेस जिनको कि कम टाइम रिक्वायरमेंट है, और एक बैकग्राउंड प्रोसेस जिसको कि हाई टाइम रिक्वायरमेंट है। और फोरग्राउंड प्रोसेस के लिए एक अलग से रेडी क्यू होगा, दिस इज फॉर द फोरग्राउंड प्रोसेस, एंड एक अलग से रेडी क्यू होगा किसके लिए? बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए। तो ईच क्यू हैज इट्स ऑन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब इसका अपना सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो सकता है और इसका अपना सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इट इज पॉसिबल दैट यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? SRTF को यूज कर रहे हो, और यहाँ पे क्या किसको यूज कर रहे हो? FCFS को यूज कर रहे हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे आप प्रायोरिटी को यूज कर रहे हो और यहाँ भी आप प्रायोरिटी को यूज कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप कुछ भी कर सकते हैं। फोरग्राउंड प्रोसेस के लिए और बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए आप चाहे तो सेपरेट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं, या चाहे तो सेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली जो फॉरग्राउंड प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है वो राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज किया जाता है, और जो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं उनके लिए FCFS का यूज किया जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप थॉट प्रोसेस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Why we are using FCFS CPU scheduling for the background process? Give a thought. I'm giving you 1 minute to think upon this. Okay, did anyone got the answers that why we are using FCFS CPU scheduling algorithm for the background process? Okay, so I'm clearing this concept.
FCFS हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि FCFS में कभी भी आपका स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं जनरेट होता है, स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं जनरेट होता है, क्योंकि जिस ऑर्डर में प्रोसेस हमारे आते हैं उसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, उनको प्रोसेसर को अवेलेबल करा देते हैं। तो इस तरह से कभी भी कोई प्रोसेस स्टार्व नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए FCFS का जनरल यूज करते हैं। अब जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होती है, इसमें क्या करते हैं, शेड्यूलिंग मस्ट बी डन बिटवीन द क्यूज। दो क्यू है हमारे पास, अब इन दो क्यू के बीच में हम शेड्यूलिंग को यूज करेंगे। Fixed priority scheduling, that is serve all the foreground then the background। अब यहाँ पे एक प्रायोरिटी ये दी गई है कि फोरग्राउंड प्रोसेस की प्रायोरिटी जो होगी वो हायर होगी देन द बैकग्राउंड प्रोसेस। इट मीन्स कि जब तक कि हमारे सारे के सारे फोरग्राउंड प्रोसेस रेडी क्यू से कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम बैकग्राउंड प्रोसेस को इन एग्जीक्यूशन नहीं लाएंगे। इट मीन्स कि अगर हमारा जब रेडी क्यू ऑफ फोरग्राउंड प्रोसेस एम्प्टी होगा तब हम सेलेक्ट करेंगे किसको, प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेस। अब ये दिस इज मे पॉसिबल दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्वेशन, बट व्हाट सॉल्यूशन वी हैव। अगर हम अपने इफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, तो सैक्रिफाइस हियर इज स्टार्वेशन। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है टाइम स्लाइस। अब चूंकि राउंड रॉबिन है तो वी विल need the time slice. Each queue gets a certain amount of CPU time when it can schedule amongst its process. That is 80% to the foreground process in the round robin and 20% to the background process in FCFS. It means ये कहना ये चाहता है कि अगर हम किसी भी प्रोसेस को प्रोसेसर अवेलेबल करा रहे होंगे तो हम ये यहाँ पे हमें प्रायोरिटी सेट करना होगा। तो प्रायोरिटी सेट करना होगा तो 80% टाइम हमारा कौन सा प्रोसेस रन करेगा प्रोसेसर में, फोरग्राउंड प्रोसेस। एंड सिर्फ और सिर्फ आपके 20% टाइम हमारा कौन रन करेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस। ओके, सो दिस इज द प्रायोरिटी एंड दिस इज द टाइम स्लाइस। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट्स। अब देखिए इससे पहले, ओके बेटा, इससे पहले हमने देखा था कि वी हैव ओनली टू क्यू, वन इज फॉर द फोरग्राउंड प्रोसेस एंड वन फॉर द बैकग्राउंड प्रोसेस। याद रखिएगा कि फोरग्राउंड प्रोसेस उस टाइप के प्रोसेस होते हैं जो कि इंटरैक्टिव होते हैं। जैसे कि इंटरैक्टिव प्रोसेस किसको कहेंगे, जैसे आपने कीबोर्ड में किसी की को प्रेस किया और आपका पीछे से म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो इसमें फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होगा, की का प्रेस होना फोरग्राउंड प्रोसेस है क्योंकि इसको जल्दी रिस्पॉन्ड चाहिए। आपने जैसे ही की प्रेस किया आपका स्क्रीन पे वो की दिखना चाहिए। म्यूजिक तो थोड़ा सा अगर डिले भी प्ले होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप गेम खेलते होंगे तो गेम में अगर आपने शूट का बटन दबाया है, इट मींस कि एम किया है और गोली चलाया है, तो दिस इज लाइक अ फोरग्राउंड प्रोसेस, आपका उसी टाइम पे शूट होना चाहिए।
तो these are some of the example of foreground process and these are some of the example of background process. ठीक है, तो हम क्या करते थे इससे पहले, अपने रेडी क्यू को सिर्फ 2 पार्ट में ब्रेक करते थे. ठीक है, मल्टी लेवल शेड्यूलिंग में. but we have also option that in a multi-level queue scheduling we can break our system into multiple queues like this, जिसमें कि सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, सिस्टम प्रोसेस को. सिस्टम प्रोसेस इट मींस कि जैसे कि जो सिस्टम के वर्क होते हैं, इट मींस जो कर्नल का वर्क होता है, इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्क होता है, वो प्रोसेस हमारा सबसे पहले रन करेगा. फिर आएगा इंटरैक्टिव प्रोसेस. इंटरैक्टिव प्रोसेस अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है. देन आएगा आपका इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस. एडिटिंग प्रोसेस इट मींस कि आपके इंटरैक्टिव प्रोसेस में कुछ एडिटिंग का वर्क हो रहा है. देन क्या आएगा आपका बैच प्रोसेस. बैच प्रोसेस लाइक कि आपका प्रोग्राम वगैरह रन करता है ना, प्रोग्राम वगैरह रन करता है, इनको बैच प्रोसेस कहा जाता है. या आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ये आपका बैच प्रोसेस होगा आपका. या आप मूवी देख रहे हैं, दिस इज द बैच प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट प्रोसेस. स्टूडेंट प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच विल टेक सो मच टाइम. अगर आप कोई एक हैवी प्रोग्राम रन कर रहे होंगे विच नीड्स वेरी ग्रेट टाइम, इट मींस कि जिसको 15 मिनट 20 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए लगेगा, तो दैट प्रोसेस विल कॉल्ड एज अ स्टूडेंट प्रोसेस. जिनको की हाई टाइम रिक्वायरमेंट होता है वो आपका स्टूडेंट प्रोसेस कहलाता है. ठीक है, सो वी कैन ब्रेक आवर क्यूज इनटू मल्टीपल क्यूज. इसमें ऑर्डर थोड़ा याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में. आपका सबसे पहले सिस्टम प्रोसेस होता है, देन आपका इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, देन इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, देन बैच प्रोसेस, देन स्टूडेंट प्रोसेस. ओके, दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. देन आपका स्टूडेंट प्रोसेस सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा. ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर. काइंडली रिमेंबर दिस ऑर्डर. Now, okay, I think I got some response by the chat box. The time required in installation student process. Yes, it is called it can be as a student process because जो आपका installation में time लगता है, इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, चाहे वो आप गेम ही क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे आप ओएस को इंस्टॉल कर रहे हो, इसमें क्या होता है वेरी हाई टाइम लगता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट प्रोसेस. ओके, ओके सुमित. ओके, Okay, sir. so now there is a scenario of multi-level feedback queues. हमारे पास अभी क्या होता था, इससे पहले हमारे पास जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होती थी उसमें ऐसा नहीं होता था कि हमारा जो एक क्यू है उससे डिमोट होके कोई नया प्रोसेस आएगा, या इस टाइप से इसको फीडबैक सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो ये फीडबैक सिस्टम किस लिए होता है, सो दैट अगर हमारा कोई प्रोसेस है जिसको हमने एज अ हाई प्रायोरिटी लिया, बट वहां पे क्या हो गया, उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, तो हम क्या करते हैं उसको डिमोट कर देते हैं. ओके, डिमोट कर दें ताकि यहाँ पे इंटरैक्टिव जो भी हमारे लेस टाइम रिक्वायर्ड है वो जल्दी जल्दी कंप्लीशन कर सकें. तो ये जो सिनेरियो है, इससे पहले जो सिनेरियो हमने पढ़ा, दैट वाज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. बट देयर इज अ नीड, ये हो सकता है ना कि हमने किसी को एज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस लिया,
उसको लिया तो एज ए इंटरैक्टिव प्रोसेस, बट टाइम रिक्वायर्ड उसका क्या था, उसका ग्रेटर था देन द टाइम गिवन टू दैट क्यू। इसका जो टाइम स्लाइस गिवन था उससे ज्यादा टाइम रिक्वायरमेंट था। तो हम क्या करेंगे उस सिनेरियो में, वी हैव अ सॉल्यूशन दैट वी कैन गो फॉर द मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसमें क्या करते हैं कि अगर वो विद इन द गिवन टाइम फ्रेम अगर वो एग्जिट हो पाएगा देन इट इज गुड। अगर वो एग्जिट नहीं हो पाया विद इन द टाइम फ्रेम तो हम क्या करेंगे, उसको डिमोट करके लोअर प्रायोरिटी क्यू में लेके चले जाएंगे। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये नीड है। तो ए प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द वेरियस क्यूज। ओके, एजिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड दिस वे। जो एजिंग हमने प्रायोरिटी में पढ़ा था ना, कि अगर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है वहां पे क्या होता है, ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन प्रॉब्लम। मम्मी के पास जाइए बेटा, मम्मी के पास जाइए। तो जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। हमने देखा था कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, नहीं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता था कि वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन, और उस स्टारवेशन का क्या सॉल्यूशन था हमारे पास, एजिंग। तो एजिंग कॉन्सेप्ट ही क्या है कि हम क्या करें, जो प्रोसेस हमारा विद इन गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेगा कि अब इस क्यू के पास गया कोई प्रोसेस पी आई। अब ये गिवन टाइम, इसका जो टाइम स्लाइस था इसमें ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या करेगा, पीछे जो प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि जो प्रोसेस ज्यादा टाइम रिक्वायर है फॉर द गिवन टाइम स्लाइस, तो हम क्या करेंगे, उसको लोअर में लेके चले जाएंगे, लोअर में क्यू में लेके चले जाएंगे और वो वहां अपना प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, और इस क्यू को, इस वाले क्यू को हम जो इसके पीछे प्रोसेस है उसको प्रोसेसिंग के लिए दे देंगे। ठीक है, और लास्ट जो सबसे बॉटम पे हमारा जो क्यू होगा उसमें अभी भी हम FCFS का यूज करेंगे, सो दैट वी कैन रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। इनफिनाइट टाइम के लिए कोई प्रोसेस वेट नहीं करेगा, इसीलिए जो लास्ट क्यू होगा उसमें हम ऑलवेज FCFS का यूज करेंगे। ठीक है, बाय दिस यू कैन इंप्लीमेंट द एजिंग। ठीक है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर जो होता है डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। नंबर ऑफ क्यूज कितने यूज हो रहे हैं, प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसमें हम कितने 5 क्यू को यूज कर रहे थे। कौन कौन सा क्यू था, डज एनीवन गिव मी द काउंट। सबसे पहले तो सिस्टम प्रोसेस आता था, फिर इंटरैक्टिव प्रोसेस आता था, फिर आपका इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस आता था, फिर आपका बैच प्रोसेस आता था, और लास्टली आपका स्टूडेंट प्रोसेस आता था। तो आपका जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर होता है वो डिफरेंट पैरामीटर पे वर्क करता है, और उसमें एक पैरामीटर है नंबर ऑफ क्यूज। तो हम जो प्रीवियसली यूज कर रहे थे उसमें 5 क्यू को यूज कर रहे थे। जरूरी नहीं है, आप इससे ज्यादा क्यू को भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज 6 7, लेस भी यूज कर सकते हैं 4 5, बट सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, फीडबैक हमें करना होगा, वी विल डू द फीडबैक। ओके, अगर विद इन गिवन टाइम में कंप्लीट हुआ वेल एंड गुड,
नहीं कंप्लीट हो पाया तो आप क्या करेंगे, उसको डिमोट करेंगे, ठीक है। यस पप्पू, आई विल शेयर दिस स्लाइड, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हम हर एक क्यू के लिए क्या यूज करें। अब डिफरेंट क्यू है तो हम किसी के लिए हो सकता है राउंड रॉबिन यूज करें, किसी के लिए राउंड रॉबिन विथ टाइम स्लाइस 5 यूज कर रहे हो, किसी के लिए राउंड रॉबिन विथ टाइम स्लाइस 10 यूज कर रहे हो, किसी के लिए प्रायोरिटी यूज कर रहे हो, किसी के लिए प्रिमिटिव प्रायोरिटी वाला यूज कर रहे हो, किसी के लिए एसजेएफ यूज कर रहे हैं, बट लास्ट वाले के लिए हम हमेशा एफसीएफएस को यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस। इट मींस कि देयर इज अ सिचुएशन दैट we can upgrade a process also and we can degrade a process also. So there must be a given method that when we can upgrade a process and when we can demote a process. कब हम अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड करने के लिए हमारे पास मेथड होना चाहिए, और डिग्रेड करने के लिए भी हमारे पास मेथड होना चाहिए, ये गिवन होना चाहिए और इसी को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट लास्ट होता है हमारा मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हेन द प्रोसेस नीड्स सर्विस। अब हमारे पास ये भी मेथड होना चाहिए कि अगर हमारा कोई न्यू प्रोसेस आया तो हम उसको किस पर्टिकुलर क्यू में डालेंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी अ मेथड फॉर दिस आल्सो। सो these are 5 criteria for multi-level feedback queue scheduling. We got a response. Sir, what is a demote process? डिमोट प्रोसेस इट मींस कि अगर हमारा हाई प्रायोरिटी क्यू में मैंने बताया था ना कि आपका जो टॉप मोस्ट लेवल पे होगा उसका हाई प्रायोरिटी होगा, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, देन उससे कम प्रायोरिटी होगा, देन उससे कम प्रायोरिटी होगा, और सबसे जो नीचे होगा उसका लेस प्रायोरिटी होगा। काइंडली वॉच दिस स्लाइड। इस स्लाइड में क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो सबसे नीचे लेवल पे है उनकी लोएस्ट प्रायोरिटी। तो अब क्या होगा कि अगर हमारा कोई प्रोसेस लाइक px आया, इसमें px अगर हम इसको राउंड रॉबिन के तरह इसको सीपीयू शेड्यूलिंग यूज कर रहे थे और इसमें टाइम स्लाइस अगर गिवन था हमारा 2, बट px का रिक्वायरमेंट था 10, बर्स्ट टाइम इसको 10 रिक्वायर्ड था, तो ऑब्वियस है कि इतने देर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इन दिस सिनेरियो वी हैव टू डिमोट दिस प्रोसेस फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। इसको हम डिमोट करेंगे, तो यही कहलाता है आपका डिमोट प्रोसेस, या कहें तो डिग्रेड करते हैं, हम डिग्रेड करते हैं एक प्रोसेस को, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? यस सुमित, एम आई क्लियर टू यू? ओके, वेरी गुड। So this is the process of multi-level queue scheduling, multi-level feedback queue scheduling, and what are the various criteria related with the multi-level feedback queue scheduling. Now I'm giving you, okay, got some response by the chat box. Sir, is there a fixed process for every level? Fixed process, what do you mean by fixed process? I'm not sure about your question, what you want to ask. Kindly clarify your question, Pappu. फिक्स्ड प्रोसेस तो नहीं होता है, बट फिक्स्ड शेड्यूलिंग होता है।
फिक्स्ड शेड्यूलिंग होता है हर एक लेवल पे, हर एक लेवल पे आपका अपग्रेड करने का तरीका होता है और आपका डिग्रेड करने का भी तरीका होता है, हर एक लेवल से एसोसिएटेड होते हैं शेड्यूलिंग, अपग्रेडिंग मेथड। ओके ओके ओके, तो अपग्रेड करने का तरीका, डाउनग्रेड करने का तरीका, शेड्यूल करने का तरीका, ये सारे तरीके हर एक क्यू से एसोसिएटेड होते हैं। हर एक क्यू जो आपको 5 क्यू दिखाया गया था, हर एक से रिलेटेड होगा उनका ये तीनों चीज, शेड्यूलिंग, अपग्रेडिंग, डिग्रेडिंग मेथड। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल देखते हैं आपका मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का। तो यहाँ पे देर आर 3 क्यूज, यहाँ पे 3 क्यू हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि देर आर 3 क्यूज, Q0 है, Q1 है, Q2 है। और यहाँ पे क्या गिवन है, Q0 जो है वो राउंड रॉबिन यूज कर रहा है विथ द टाइम क्वांटम वैल्यू एज 8 मिलीसेकेंड। Q1 जो है वो भी राउंड रॉबिन यूज कर रहा है बट विद द टाइम क्वांटम वैल्यू एज अ 16 मिलीसेकेंड। और Q2 जो है वो क्या यूज कर रहा है, FCFS को यूज कर रहा है। अच्छा, एक बात में, एक स्मॉल क्वेश्चन है कि अगर हम एक हाई प्रायोरिटी क्यू है, हायर प्रायोरिटी क्यू है और एक मीडियम प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, अब दोनों में ही हम राउंड रॉबिन को यूज कर रहे हैं, तो कैन यू गिव मी द रिलेशन बिटवीन द टाइम क्वांटम 1 एंड टाइम क्वांटम 2? टाइम क्वांटम 1 और टाइम क्वांटम 2 में क्या रिलेशन होगा? कैन यू गिव मी दैट रिलेशन? Okay, we got a response via the chat box. Time quantum 2 is greater than time quantum 1. Very good, Pappu. Very good. Because this has a lesser priority than this. So that's why time quantum 2 is greater than, always greater than time quantum 1. Very good. तो ये हमारा सिनेरियो है जिसमें कि हम क्या करें, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू को यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑलवेज कहा है कि जो सबसे बॉटम में होगा उसमें FCFS को यूज करेंगे। अब जो शेड्यूलिंग है, ठीक है, शेड्यूलिंग अगर हम कर रहे हैं कि ए न्यू जॉब एंटर्स क्यू 0 विच इज सर्व्ड FCFS, when it gains CPU, job receives 8 मिलीसेकेंड, ठीक है। जॉब क्या रिसीव करेगा, क्योंकि वो Q0 में एंटर कर रहा है तो उसको कितना टाइम क्वांटम का वैल्यू मिलेगा, 8 मिलीसेकेंड का मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, when it is not finished in 8 millisecond, job is moved to the Q1, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर हमारा एक Q0 में हमारा कोई प्रोसेस आया P1 तो इसका टाइम क्वांटम वैल्यू गिवन है 8 मिलीसेकेंड। अब क्या हुआ कि 8 मिलीसेकेंड में वो अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो एग्जिट नहीं कर पाएगा इस क्यू से, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिमोट दैट प्रोसेस और डिमोट करके Q1 में ले जाएंगे, किसको, P1 को, और P1 यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे टाइम क्वांटम की वैल्यू कितनी है, 16 मिलीसेकेंड। अगर वो 16 में वो कंप्लीट कर पाया तो ठीक है, यहां से हम एग्जिट कर देंगे, और नहीं कंप्लीट कर पाया
तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो में हम फिर से इसको डिमोट करेंगे और Q2 में लेकर के जाएंगे। ठीक है। नाउ एट Q1 job is again served FCFS and receives 16 additional millisecond. ठीक है। if it is still does not complete, it is preempted and moved to the Q2. ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात आ रहा है कि FCFS वो इसलिए क्योंकि ये क्यू है। ठीक है। और FCFS ये कहने का मतलब है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है उसका। ये कहना चाह रहा है कि ये क्यू है और क्यू में मान लिया जाए पहले से यहाँ P0 P1 है और उसके पहले से P0 है, तो हम सबसे पहले P0 को प्रोसेस करेंगे, ना कि P1 को प्रोसेस करेंगे। ये कहना चाह रहा है यहाँ FCFS। यहाँ जो दोनों ही लाइन में लिखा हो ना कि FCFS, तो जो पहले से प्रोसेस हमारा क्यू में प्रेजेंट रहेगा हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे सबसे पहले। देन हमारा कोई न्यू प्रोसेस आएगा तब हम उसको प्रोसेस करेंगे। और जो क्राइटेरिया गिवन है हर एक क्यू के लिए, इट मींस टाइम क्वांटम की जो वैल्यू गिवन है उतने देर के लिए हम उस प्रोसेस को वहां पे प्रोसेस करेंगे। ठीक है। और इतने टाइम में अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाया तो इट इज वेल एंड गुड, इट विल एग्जिट फ्रॉम दैट क्यू। और नहीं हो पाया तो दिस विल गेट डिमोटेड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। And for the previous example, this is the diagram. पहला क्यू है, पहला क्यू का टाइम क्वांटम वैल्यू 8 है, दूसरा क्यू है इसका टाइम क्वांटम 16 वैल्यू है, और लास्ट क्यू है जो कि FCFS को यूज कर रहा है। जो भी प्रोसेस होगा वो सबसे पहले कहां आएगा, Q0 में आएगा। अगर वो 8 में काम कर पाया तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको डिमोट कर देंगे। फिर डिमोट होकर के प्रोसेस कहां पे आएगा, Q1 में आएगा। अब देखिए यहां पे एक बात है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जब तक कि हमारा Q0 में का रेडी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक हम Q1 में वर्क नहीं करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक कि आपका Q0 का रेडी क्यू एम्प्टी नहीं होगा तब तक हमारा Q1 वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज। ठीक है। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट, सभी को क्लियर है ना? Okay, I think we got some response. Clear. Okay, very good. Now I'm giving you link for today's attendance. Please fill it up. Those who are present here. सभी को समझ में आया? अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं सभी को क्लियरली समझ में आया है? नाउ इट इज अ Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। I gave you link also for the attendance. If you have any kind of doubt, then you can ask right here, right now.
Okay, 16 of you have responded also. Now I have one thing also. सर सीपीयू का शेड्यूलिंग होता है तो वो सिस्टम खुद मतलब तय करता है कि कुछ कोड करना पड़ता है। क्या कहा आपने? सर जैसे बहुत सारे शेड्यूलिंग अभी पढ़े हैं ना हम लोग, हाँ तो हाँ, वो कब जरूरत पड़ता है या मतलब सिस्टम खुद कॉल करता है उस तरह की कुछ नहीं कोडिंग कर। ओएस में ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना उसमें यस ये प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम्ड होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सर। Okay, now I have one thing to share with you that क्या आप सभी लोग को C++ की प्रोग्रामिंग आती है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। C++ की प्रोग्रामिंग आती है। तो now you have lab also related with operating system. So आप लैब कॉपी में क्या लिखेंगे? तो लैब कॉपी में जितने भी अभी तक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ाए गए हैं, एफसीएफएस, एसजेएफ, एसआरटीएफ, प्रायोरिटी में 2 फ्लेवर, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, देन राउंड रॉबिन, ठीक है। इनमें से आप हर एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को अपने लैब रिपोर्ट में लिखेंगे, यू विल राइट इट डाउन। थोड़ा थ्योरी पार्ट होगा कि व्हाट इज दिस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हर एक के लिए अपना थ्योरी पार्ट होगा, उसमें थोड़ा एक न्यूमेरिकल लेंगे और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू ऑल द डिटेल्स रिलेटेड विथ योर लैब रिपोर्ट, जो कि लास्ट में जाके आपका चेक होगा, ठीक है, ये जब भी कॉलेज खुलेगा ऑफलाइन मोड में। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग हर एक में आएगा, फिर जिस सीपीयू शेड्यूलिंग लाइक एफसीएफएस के बारे में आप प्रोग्राम करें तो एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, ये आएगा। फिर उसका एक न्यूमेरिकल आएगा और देन उसका क्या आएगा, लास्ट में प्रोग्राम आएगा। और प्रोग्राम जो आप लिखेंगे उसी प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट को एज अ रिजल्ट आपको लैब रिपोर्ट में उसको पेस्ट करना है। तो इस हफ्ते आप लोग को एफसीएफएस और एसजीएफ को इंप्लीमेंट करना है। इस हफ्ते का ये 2 प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। ग्रुप में या फिर गूगल क्लास में डाल दीजिए लैब रिपोर्ट के क्वेश्चंस। ओके, आई विल गिव यू द क्वेश्चन इन द गूगल क्लासरूम, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। Now, do you have any another question related with the class? Okay, thank you. No problem, I will do all the needful. Thank you student, have a nice day.